ये आपको 25 नंबर दिख रहा होगा। इस बिल्डिंग में हुआ करता था रसोई हवेली इंडियन रेस्टोरेंट, और जो कि अब बंद हो चुका है। तो ये बंद हो गया, मैं कहीं और जा रहा हूँ, रसोई इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। क्योंकि वो हवेली रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, वहाँ जाके ही पता चला, तो फिर मैंने दूसरी कैब बुक करी है और रसोई इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। और रास्ते में मुझे ये ड्रैगन ब्रिज के ऊपर से निकलना है। काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया। ये है हमारा ये है रसोई वीगन वेजिटेरियन एंड जैन फूड इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है। ये आप उसमें इंटरनेट पे डालेंगे, ग्रैब में डालेंगे तो इसका एड्रेस आ जाता है। और ये है रसोई इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ से हमारी एंट्री। जर्मन्स भी आए हुए हैं यहाँ इंडियन फूड खाने के लिए, उनको इंडियन फूड पसंद आता है। इनका मेनू भी बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। इनके वाईफाई का पासवर्ड भी दिया हुआ है, आई लव इंडिया। और मेनू बहुत अच्छा है इनका, और शुद्ध शाकाहारी है पूरा। यहाँ पर नॉनवेज फूड नहीं सर्व करते हैं। और ये लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो ऐसी आशा करता हूँ कि खाना स्वादिष्ट ही बनेगा। मैंने कम मिर्च का खाना ऑर्डर कर दिया है, और जैसे ही खाना आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसा बना है। ये आ गया हमारा खाना। जब मैं रेस्टोरेंट में एंटर कर रहा था तब मेरे साथ में ये दोनों कपल भी एंटर हो रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग गलती से आ रहे हैं, क्योंकि बगल में ही एक दूसरा रेस्टोरेंट था जहाँ पर वियतनामीज फूड मिलता था। लेकिन जब ये अंदर आए और उन्होंने देखा कि ये सब इंडियन है, और ये उसके बाद यहाँ आके बैठ गए। और फिर इन्होंने बहुत सारा कुछ ऑर्डर किया खाना और खाया भी। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा इनसे एक सेकंड बात कर लूँ। तो जब मैं बात करने लगा तो इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अब मैं एक एक करके इनसे आप लोगों को मिलवाता हूँ। थोड़ा सा व्यू यहाँ से ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहीं पे वापस जहाँ बैठा था। लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दैट कंटेनर। आप दोनों इजराइल से हैं, और अब मैं नाउ आई गिव द माइक टू यू, प्लीज योर फीडबैक। As you can see, it was a horrible experience. Actually, the food is so delicious. If we had enough room, we would buy everything from the menu. Thank you. It is such a delicious. He ate here yesterday, and he made me jealous. So. Oh, he came alone. Yeah, he came alone. How can you do that? That's why I was tasting. Yes. Okay. So first you tried, you were the guinea pig. It was confirmed, and then you brought your wife, so that no dispute at home after that. But it's so delicious. As you can see, we left nothing. Would you like to learn how to cook this dish? Would you like to learn how to cook this? Yeah, that's what I just told you. Oh, that's great.
Yeah, I don't know. I have learned, but I don't know what is this one called. This one, this is called as chutney sauce, and this is made chutney in Indian Hindi language. It's chutney. In English, you call it sauce. It's a green sauce made out of coriander leaves. Oh my God. Coriander, green chilies. They're grinded well, and some dried mango powder. Really? Yeah. Not ripe mango. Dried this green color mango you might have seen, right? When it is dried and under the sun, then it is grinded and that powder is added to it. That gives you that tangy taste Oh my and God, little bit it's so salt. delicious. Yeah, you will get all the ready-made spices in any Indian grocery store. You can make coriander, green chili, What did you eat? and mint leaves also in that. Yeah, mint leaves also. Yeah. What did you eat? I had matar paneer, that is green peas with cottage cheese and rotis. 2 roti I had, and quantity was sufficient. Like 1.5 was enough for me. I stuffed the other half because I don't want to waste the food also. And you cannot stop eating. You cannot. Yeah. Cannot stop eating. Generally, it's famous that Indian food is finger licking. If you eat by hand, you can see the spices. They leave good color also. Yeah, same there. On you, the color has come out very well. Oh, it's like garbage. What's your So name? delicious. My name is Ortal. All the time. Yes, and he's Dennis. Okay. Not Dennis the Menace movie. Sometimes. Other like that. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you so much. What is your name? My name is Avinash. Avinash? Yeah. Avinash, it's a pleasure meeting you. And the meaning of Avinash is in English, immortal. Immortal? Immortal. Nobody can destroy or do anything. Never That can be distracted. is so cool. Yeah. Parents have decided and kept it. Oh, you have like the coolest name ever. And you're Yeah. just walking here among the mortals. थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब नज़र मारते हैं बिल पर। एक मटर पनीर 1,35,000 डोंग, मीडियम स्पाइसी मैंने मेंशन कर दिया था। 2 तंदूरी रोटी 80,000 डोंग, और सब्ज़ी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं ख़त्म नहीं कर पाया। तो बची हुई सब्ज़ी मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ पैक कर दीजिए, और साथ में मैंने 2 प्लेन तवा रोटी भी पैक करवा ली है, क्योंकि 70,000 डोंग के टोटल 2,85,000 डोंग का बिल आया है, वियतनामी डोंग का। ये 2 रोटी मैंने इसलिए पैक करवा ली कि दोबारा यहाँ तक मुझे आना नहीं पड़ेगा। शाम को मैं अपने रूम में ही उसको खा लूँगा। बाय बाय बाय। दे वर वेरी हैप्पी। बहुत खुश थे वो लोग मिलके कि मैंने पैक करवा लिया है। मुझे पैकिंग उन्होंने कर दी है बहुत अच्छे तरीके से, और मैं होटल रूम में उसको खा लूँगा। और रही बात गर्म करने की, तो होटल में माइक्रोवेव मेरे रूम में नहीं है, लेकिन होटल में मैंने उनसे बात करी थी कि अगर मैं बाहर से कुछ खाना लाता हूँ तो आप उसको गर्म कर देंगे माइक्रोवेव में। उन्होंने कहा था हाँ हो जाएगा किचन में। तो ठीक है, ये हो जाएगा, मेरा काम ये हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छे खाना खाने के बाद और बहुत अच्छे रिव्यू के बाद मैं इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। ये देखिए, ये सब हो रहा है।